Hello, guys. A warm welcome to each one of you for being here. And thank you so much for taking out your time. And it really means a lot that you want to work on yourself. And today we are going to cover a very important topic, which we all usually face, that is procrastination. So type in the chat box how many of you are suffering from this procrastination thing. I would like to know. So, yeah, okay. Most of you are saying yes. Okay, so today let's learn how to overcome procrastination and what is procrastination and why do we procrastinate. First of all, do you have dreams? And do you think that there is something which is stopping you from achieving your dreams? Yes, you are right. Procrastination is one of the reasons which stop you from achieving your dreams. So what you do just right now, make two circles. One where you write your current life, and another circle you write my dream life. The perfect dream life that you wish to achieve. And in between them, there is one small thin line where you will write procrastination. So, if you want to go from this circle to this circle, that means from the current life to the dream life, what you need to do is break that procrastination ka barrier and reach your dream life. How interesting it would be that you living your dream life that you wish, that you desire. Then let's work on cutting that procrastination coming in the way, coming as a roadblock between you and your dream life. So let me tell you guys what is procrastination. Procrastination is manifestation of your resistance. Now you'll say resistance की वजह से procrastination. Yes, you're right. Whenever we try to go out of our comfort zone, the resistance comes and stops us, says you can't do it. तुम नहीं कर सकती हो ये. This is difficult. This is an unknown territory. You can't go and jump there. Can you believe it? You are going to an unknown territory जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है. Oh my God, that is just stopping you, pulling you down because you are trying to get out of that comfort zone, trying to grow yourself, and the resistance comes, in multiple forms. It's not just stopping you from achieving your goals by asking you to not go out of your comfort zone, but it also tells you that there is a fear of unknown. Then there comes the second person, that is perfectionism. जब ये perfect होगा, then I will do it. And what happens in that? We keep working. It's not that we don't keep working because we want to achieve our dreams. So we keep working. We keep perfecting. हम करते जाते हैं. But we don't do what is actually required. वहां पे क्या होता है ना? Can you tell me वहां पे क्या होता है when we don't do what is actually required but we just keep working in the background? Our confidence goes down because we don't see results. And results दिखेंगे कैसे? Because you have not put things in action. You are waiting to launch yourself as a perfect person. So what you need to do is
रिमूव दैट परफेक्शनिज्म, इसको बोलो क्रॉस क्रॉस, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, आई एम गोइंग टू अचीव यू, definitely I'm going to achieve you, but right now I am launching myself in the best possible manner that I have with me right now, with whatever resources, whatever things that I have with me. So what you do, begin before you are ready, launch yourself before you are ready, and believe me, जब आप अपने आप को एक बार लॉन्च कर दोगे ना, automatically things will start rolling for you, because you have put yourself into action by saying tada bye bye to procrastination and perfectionism जो आपको stop कर रहे थे. And now again you'll think यार अगर perfect way में नहीं किया तो what will people think about me? होता है कि नहीं होता है? We have the fear of judgment. एंड ये वाली चीज पे मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ डे 1 पे, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ जजमेंट ऑफ पीपल. सो if you are watching, if you have missed that day 1 ka thing, then you can watch in the recordings. I'll be uploading it soon, so go and watch in the day 1's recording, that how can we overcome the fear of judgment from people. Now that is closed chapter, ठीक है. Now what happens when you launch yourself, you are in action. भले आप आज perfect नहीं, you know that, analyze क्या 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 मुझे इसमें और perfection चाहिए, and the next time make it little more better. कर सकते हैं, right? Why we stop now? Because we want for the perfect moment जहां पे एकदम सारी चीजें 100% हो, जिसको करने में बहुत टाइम लगता है, and that stops us from seeing the results right now, which ultimately pulls our self-confidence down. And we don't want that to happen. So we start and get perfecting ourselves on the way, because जब आप चीजें practically करते हो rather than planning on paper, the things changes. जब हम सिर्फ पेपर पे चीजें करते हैं तो चीजें होती है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे होती है. प्रैक्टिकली सो मेनी थिंग्स कम इन पिक्चर विच वी नेवर थिंक अबाउट, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये सारे स्टेप्स जब होंगे तो परफेक्टली हम लॉन्च कर पाएंगे. बट दैट इज नॉट ट्रू. जब हम प्रैक्टिकली चीजें करने जाते हैं, वो स्टेप 1 से स्टेप 10 चीजें तो होगी, बट देयर विल बी सम स्टेप 5 ऑल्सो जो एक्स्ट्रा आएगी, बिकॉज यू हैव नॉट डन इट प्रैक्टिकली एंड यू विल लर्न इट ऑन द वे. तो जब अगर ये चीजें हमें ऑन द वे सीखनी है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट बिगिन विद व्हाटएवर वी आर हैविंग राइट नाउ. वी कैन परफेक्ट ना, यहाँ पे ज्यादा परफेक्शन के चांसेस है क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिए चीजें, वी आर रोलिंग इनटू एक्शन. तो उससे क्या होता है ना कि जब हम लोग चीजें कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आती है, अननोन चीजें आती है जो हम पेपर पे करते हैं तब बिल्कुल हमें नजर नहीं आती है. सो द बेस्ट वे टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन इज लॉन्च विद व्हाटएवर यू हैव. डोंट एम फॉर परफेक्शन. That will help you to perfect it more faster rather than doing things, planning things. और है ना, जब हम लोग दिमाग और पेपर पे चीजें करते हैं ना, उसमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, राइट? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट प्रैक्टिकली, एंड दैट डेफिनेटली लोअर्स आवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि चीजें दिखाई नहीं दे रही है, किसी को भी नहीं दिखाई दे रही है. हमारा कॉन्फिडेंस तो जाता जाता है, हमारे जो आसपास जो लोग होते हैं वो हमें और ज्यादा बोलते हैं कुछ हो तो नहीं रहा है, यू आर डूइंग समथिंग, कुछ हो तो नहीं रहा है, यू आर डूइंग समथिंग. एंड फिर तो और ज्यादा नीचे चला जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है यार
मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, मेरे घर वालों को भी, फ्रेंड्स को भी यही लग रहा है कुछ हो तो नहीं रहा है, बट वी आर स्पेंडिंग टाइम। हम लोग कर रहे हैं चीजें ऑन पेपर जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, बट व्हेन वी डू थिंग्स प्रैक्टिकली, नाउ इफ यू आस्क मी, देन आई एम ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट लाइफ कोच। आई एम टेलिंग यू, मेरे अंदर अभी 100 खामियां हैं। I know I am not a perfect coach. Even I am learning. I am like growing day by day. But the most important thing is I have launched with whatever knowledge that I have. Now I'm learning day by day. हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, हर वेबिनार से कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ कि आज ये गलती हुई तो इसको ओवरकम कर लूंगी। फिर टेक्निकल चीजें भी बहुत सारी पिक्चर में आती है, विच वी व्हेन वी डू ऑन पेपर, वो टेक्निकल चीजें कभी हमें दिखाई नहीं देती है। So it's the journey we need to start. The moment we started, it is going to give us a lot of learning. जो आपने आज ये स्टेप 1 उठा लिया है ना, तो आपको वो स्टेप 10 जहां परफेक्शन आपको चाहिए, जो आप अल्टीमेटली डिजायर करते हो कि जो स्टेप 10 होगा तब मैं लॉन्च करूंगी, I suggest कि launch yourself on the step 1 itself. You will be way more better than the step 10 when you actually reach that step 10. Because यहाँ पे आपने practically चीजें की होगी and people will be seeing it. तब आपको questions नहीं आएंगे इतने सारे कि कर तो कुछ नहीं रही है, हो तो कुछ नहीं रहा है. You can at least say, यार आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, see this. Although not perfect, it's okay. कोई भी ऐसे पेट से नहीं सीख के आता है. वी लर्न एवरीथिंग. हमने हर चीज कर करके ही सीखी है. मेड बी वॉकिंग, मेड बी टॉकिंग, मेड बी ईटिंग, एवरीथिंग. सो नाउ आई टेल यू कि माइंड हमें कहाँ पे कंट्रोल करता है. यहाँ पे माइंड लव्स इजी एंड कंफर्टेबल थिंग्स. तो जब भी हम कोई अननोन टेरिटरी में जाने जाते हैं, नई चीज पिक करने जाते हैं, इट जस्ट स्टॉप्स अस. इट सेज ये तुझे पता नहीं है, ये तुमने कभी पहले नहीं किया है. यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर. रहो ना, यहीं पे रहो ना, क्या बिगड़ जाएगा. आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. राइट नाउ यू जस्ट एंजॉय, चिल, रिलैक्स. क्यों जाना है ऐसे जोन में जहां पे आपको डर लग रहा है? बट शुड वी लिसन टू इट? नो, राइट? Why should we listen to it? Because we want to achieve that second circle, right? My desired life. जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये करंट लाइफ है और ये डिजायर्ड लाइफ है, तो हमें तो वो चाहिए. अगर वहां जाना है तो इसको तो ना ही बोलना पड़ेगा. इट विल कीप स्टॉपिंग अस एवरी मोमेंट वी टेक अ न्यू एक्शन. सो यहाँ पे माइंड को हमें बोलना है, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, आई एम गोइंग टू गो. तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात को. देन सेकेंड इज, आवर माइंड ऑलवेज सेज कि बस मुझे राइट चीज होगी ना तो ही करना है. आई डोंट वांट टू फेस फेलियर्स. होता है, माइंड बोलता है एकदम एकदम ऐसे 10 on 10 चीज होगी तो ही तुम जाके करो, क्योंकि दैट विल बी लाइक द परफेक्ट थिंग फॉर यू. तो दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज टेल योरसेल्फ 10 on 10 भी होगा, डोंट वरी. अभी तो मेरे को 1 भी आएगा तो चलेगा. तो माइंड बोलेगा 1, इतना कम, डोंट डू इट ना, व्हाई यू वांट टू डू इट. फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन में डालेगा आपको. देन से आई वांट टू डू इट बिकॉज मुझे उस 10 पे पहुंचना है. देन माइंड विल अंडरस्टैंड ये वापस से नहीं सुन रही है, शी इज वेरी वेरी स्टबर्न, नहीं सुनने वाली है ये. एंड अगेन वी हैव गॉट वन मोर क्रॉस ऑन द प्रोक्रेस्टिनेशन. एंड हम वो जो लाइन है हमारी सर्कल के बीच में जहां पे हमने प्रोक्रेस्टिनेशन लिखा है, बिटवीन अवर करंट लाइफ एंड आवर डिजायर्ड लाइफ, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक इट, बिकॉज हमें वहां पहुंचना है. So, do you have any questions till now? Thank you, Karishma. Do let me know if you have any questions. What does your mind say when the procrastination comes?
So I have started implementing this thing कि 5 4 3 2 1 कर ले, भाड़ में देखा जाएगा, जो होगा कर ले. Seriously, it helps a lot because when we don't give time to our mind to think the consequences and all the things that will happen, तो it helps us कि सोचने का टाइम ही नहीं दिया ना हमने, और हमने कर लिया, तो अब करने के बाद तो क्या ही बोलेगा माइंड. So this is also one mantra, guys. Thank you for sharing, Karishma. This is by Mel Robbins. That if we want to do something, the idea has come to us. We should act immediately on it within 5 seconds. हमने अगर उससे ज्यादा टाइम दिया ना उस चीज को, तो our mind has thousands of thoughts to stop us to procrastinate the things. Now let us see further कि why we what are the other reasons जिसकी वजह से हम प्रोग्रेसिव. एक तो हमने देखा परफेक्शनिज्म की वजह से, दूसरा कि हम लोग को इजी और कंफर्टेबल चीजें पसंद होती है. देन कम्स हमको वो जो टास्क हमने चुना है वो थोड़ा टफ लगता है स्टार्टिंग में, बिकॉज इट इज वेरी बिग अकॉर्डिंग टू आवर माइंड कि इट इज सच अ बिग टास्क, इतना सारा काम करना पड़ेगा. तो आवर माइंड स्टॉप्स, यार ये तो बहुत काम है मेरे लिए, एंड वी ऑलरेडी डोंट हैव टाइम. हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो टाइम है ही नहीं. बट लेट मी टेल यू, if we keep living the life that we are living and keep doing the things we are doing, we will stay in that first circle only. वो second circle तक हम पहुंचेंगे ही नहीं. We need to check out some things which are like which can be delegated, या फिर किसी और से हम करवा सकते हैं, या फिर वो बहुत लो प्रायोरिटी नहीं भी करेंगे अभी तो चलेगा, तो उनको क्रॉस कर दो. And start finding out time from that bucket which we are having, ताकि एक ये जो हम लोग बार बार रीजन देते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग सारा फोकस टाइम नहीं है पे लगाते हैं. हमें फोकस लगाना है टाइम कैसे निकालना है. व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू प्रायोरिटाइज. एंड इसके लिए ब्रायन ट्रेसी ने एक बहुत अच्छा फंडा दिया है कि फाइंड आउट वन फ्रॉग फॉर योर डे. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो अगर आपने उस दिन कर ली एंड बाकी की कोई भी चीज अगर आपने उस दिन में नहीं की है ना, it will move you towards your goals. And do it first thing in the morning. तो the one thing that is possible is हम लोग जल्दी उठ के कर ले, बट मेरे केस में ये हो नहीं रहा है. frankly speaking, I cannot eat it first thing in the morning. तो I have find a way out कि when my productivity is at its maximum, और वो कब होती है जब सब लोग चले जाते हैं, घर में पूरी शांति होती है ना, तब होती है. तो आई हैव फाइंड आउट अ टाइम कि व्हेन एवरीथिंग इज पीसफुल अराउंड मी, तब मुझे तब वो मेरे लिए लाइक एक क्या बोलते हैं क्वालिटी टाइम है, व्हेन आई एम एबल टू फोकस. दैट इज माय डीप वर्क करने का टाइम, जहाँ पे मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. सुबह सुबह इफ यू से 4 और 5, उतनी जल्दी तो मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, बट आफ्टर 6 माय डॉटर गोज एट 6:30, तो दिमाग चलने लग जाता है कि अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है. And even if we are not working, our brain is working, we can't focus on things. You know it. You must be knowing कि कैसे हमारा दिमाग चलता है. भले हम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दिमाग कंटिन्यूस काम करता रहेगा. तो when everybody goes and when I am peaceful, तभी I have the focus वाला time. So I have made that time as the time to do my frog वाला चीज. And once I do that frog वाला thing, I feel happy. अब बाकी की चीजें होगी कि नहीं होगी, that is a bonus for my day. बट ये वाली चीज होगी. एंड कीप दैट एज द, उसको छोटा वाला टास्क मत बनाना फ्रॉग को. वो वाला ऐसा टास्क होना चाहिए जो आपको आपके गोल से पास लेके जाए. यूजुअली व्हाट हैपेंस ना, हम जब टू डू लिस्ट बनाते हैं,
सपोज वी हैव मेड टू डू लिस्ट, वैसे भी छोटी बनानी चाहिए. सपोज वी हैव टेकन 5 टास्क, ठीक है, एंड 5 टास्क में से हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रॉग वाला यूजुअली डिफिकल्ट होगा, थोड़ा कुछ उसमें है ना ऐसा होगा कि जिसमें आपका ज्यादा ब्रेन लगेगा या ज्यादा वर्क लगेगा. तो व्हाट वी विल थिंक, आवर माइंड विल से ओके, अभी मैं ना ये इजी वाला कर लेती हूँ, ये थोड़ी देर के बाद करूंगी, इसमें थोड़ा ना ज्यादा सोचना, ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, फिर दूसरा कर लेती हूँ. ऐसे हम लोग ना 4 को तो टिक कर देते हैं. व्हाट हैपेंस टू दैट मेन फ्रॉग, वो गया दूसरे दिन के लिए. तो हमारा निडल मूविंग टास्क नहीं हुआ उस दिन का, बाकी के 4 हो गए. एंड अगेन जब वो 4 हो गए और जो निडल मूविंग टास्क नहीं हुआ ना, हमारे दिल को तो पता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट था ना वो तो मैंने किया ही नहीं आज. एंड ऐसा एक दिन नहीं होता है, बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव फेस दिस. ऐसा एक दिन नहीं होता है, ऐसा दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है, 1 वीक होता है, 2 वीक होता है, महीनों निकल जाते हैं. दैट इज हाउ अवर ब्रेन फंक्शंस. उसको उसको लगता है कि मैं तो बिजी हूं ना, मैं तो बिजी हूं, मैंने तो इतना सारा काम किया, इतना सारा काम किया, बट इट डिड नॉट हेल्प यू टू मूव टुवर्ड्स योर गोल. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट काम? आपको तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस तो डाउन होते जा रहा है. Instead of doing that 4 things, if we focus on this one thing and do it now, believe me, the amount of satisfaction your heart will get of moving towards your goal will be another level. So do that needle moving task. First thing नहीं हो सकता है तो anytime whenever you feel that this is my productivity वाला deep work वाला time जहाँ पे मेरे distractions minimum है, do it. It can be someone, किसी के लिए ये night भी हो सकता है, जब सब सो चुके हैं तब भी हो सकता है. किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग भी वर्क करता हो तो वो तो बेस्ट टाइम होता ही है. मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल वर्क अर्ली मॉर्निंग्स. एंड दिस इज द वे आउट कि जब आपने अपना निडल मूविंग टास्क डिसाइड कर लिया है एंड यू हैव डन इट, इट्स फाइन. बाकी के काम हो या नहीं हो, दैट विल हेल्प यू कि एटलीस्ट अब आपको वो गिल्ट वाला फीलिंग नहीं रहेगा कि मैंने ना मुश्किल टास्क नहीं चुना जो मुझे मेरे गोल से क्लोजर ले जा सकता है. आपने कर लिया ना, नाउ यू से यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू डू द नेक्स्ट टास्क. एंड हाँ, यहाँ पे एक और एक चीज होती है, जब वो बड़ा गोल होता है ना, लाइक जैसे अगर आप मुझे पूछो तो मेरा बड़ा गोल है टू लॉन्च माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल कोच दिस ईयर. तो ऐसा लगता है इतना बड़ा टास्क, एक कोच की तरह लॉन्च कर रहा है, कोर्सेज इंप्लीमेंट करने होंगे, आइडियाज इंप्लीमेंट करने होंगे, मार्केटिंग करनी होगी, फलाना ढिंकाना, 100 तरह के ख्याल आते हैं. So the best thing is to write everything that is coming in your mind. उसके बाद वहां पे जाके देखो कि इसमें से प्रायोरिटी वाले कौन से जो आपको इमीडिएटली करने हैं. तो उसमें भी परफेक्शन पे मत जाओ. इफ यू डोंट नो, डोंट गो फॉर परफेक्शन. उठा लो सिर्फ उन सारे टास्क को कि अच्छा ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, तो एटलीस्ट मेरा फर्स्ट वेबिनार लॉन्च हो जाएगा. देन एक बार फर्स्ट वेबिनार हो गया, अगेन यू विल फाइंड आउट अरे यार ये मिसिंग था, वो मिसिंग था, वो मिसिंग था. एड देम अप. तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे वी विल नो कि वी हैव स्टार्टेड रोलिंग इनटू एक्शन, एंड दैट विल गिव अस द मोटिवेशन क्योंकि हमको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे. एंड अगेन दैट विल हेल्प अस टू रेज आवर कॉन्फिडेंस. तो अल्टीमेट गोल हमारा कॉन्फिडेंस रेज करना ही है. तो इट ऑल हैपेंस व्हेन वी मेक थिंग्स कम इनटू एक्शन. तो जब हमको क्लैरिटी नहीं है, देखो इतनी सारी चीजें होती है, क्लैरिटी हमको हर चीज की नहीं होती है. वी ओनली नो कि अच्छा मुझे कोच बनना है, ठीक है, मेरे केस में मैं बोल रही हूँ, बाकी लोगों का कुछ भी और गोल हो सकता है. मेरे केस में है कि मुझे कोच बनना है, ठीक है. मुझे क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीजों की, लेकिन अगर मैं सिर्फ बैठी रहूं सोचती रहूं मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, कुछ होना है, कोई आके मुझे क्लैरिटी देगा. Until and unless I don't work for myself, I don't go and approach people, I don't go and
एनरोल इन द प्रोग्राम्स जहाँ पे लोग ये सिखाते हैं कि कैसे कोच बनना है या हाउ यू कैन बिकम व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रीचिंग। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कोचिंग इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाके या यूट्यूब में जाके या फिर जहाँ पे भी आपको सी मेन थिंग इज आपको नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, गेट इट डन। स्टक मत रहो, मेरा कहना यही है कि ट्राई टू फाइंड आउट कि इस चीज में मुझे हेल्प कहाँ से मिल सकती है, हाउ कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो दैट विल बी बेनिफिशियल जब हम लोग एक 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 स्टेप चढ़ेंगे रादर देन लुकिंग एट द टॉप। तो हमारा वो जो डर है, फियर है कि ये तो इतना बड़ा टास्क है, वो स्टॉप हो जाएगा। वी विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट दैट टाइम, वी विल टेक bit by bit small actions every day, we need to take the actions। और अगर हमने कंसिस्टेंटली कुछ चीज कर ली ना, तो the results are bound to come, trust me on that। and what happens when we do these things, try to keep yourself distraction free। आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास। सबसे बड़ा तो ये है, इसको ना एक लॉकर में ही डाल दिया करो। पर होता क्या है उस केस में भी बहुत सारी बार हम लोग को कुछ रिसर्च करनी होती है, तो वापस से बाहर आता है। रिसर्च तो हम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन आएगा, देन वी विल गो एंड चेक। फिर क्या होगा, 10, 15, 20, आधा घंटा कब निकल गया हमें पता ही नहीं चलता। So it's better to keep your this notifications and all on silent। आपको सिर्फ रिसर्च करने के लिए उठाना है तो सिर्फ गूगल खोलो एंड सिर्फ उसी में जाके रिसर्च करो, एंड उसमें भी जो आपको चाहिए ना सिर्फ वो रिसर्च करके आओ, क्योंकि वहां पे भी गूगल में भी इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि इट विल टेक यू टू दिस 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 दिस। हम गए होंगे कुछ एक टॉपिक स्टडी करने एंड हम वहां से निकलते हैं 10 टॉपिक देखते देखते। सो इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन व्हाट वी वांट टू डू। और उसके लिए ना एक, मैं तो बोलती हूँ एक ऐसे स्टिकी नोट लगा लो आपके सामने कि अभी मैं ना मेरा फोकस है, जैसे कि आज मुझे वेबिनार लेना था प्रोक्रेस्टिनेशन का, तो माय फोकस वाज टू डू ऑल द R&D अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं। सो जस्ट टेक अ स्टिकी नोट कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज ओनली माय फोकस, मुझे कुछ भी और रिसर्च नहीं करना है। आज मैं जाके रेजिस्टेंस के बारे में नहीं सोचूंगी, आज मैं जाके फियर के बारे में नहीं सोचूंगी, आज मैं जाके सेल्फ लव के बारे में ही सोचूंगी। सो दिस इज माय एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू माय एग्जांपल कि हाउ आई डू। सो इट्स ऑल अबाउट, और जब आप चीज फोकस के साथ करोगे ना, तो ये जो आप बोलते रहते हो कि टाइम नहीं है टाइम नहीं है, ट्रस्ट मी जो चीज आप 10 घंटे में करोगे ना, वो आप आराम से 2 घंटे में निपटा दोगे इफ यू डू इट विथ फोकस। सो यहाँ पे आपके 8 घंटे बच गए, उस 8 घंटे में जाके मस्त चिल करो ना। Go and do whatever you love to do। You want to spend time with your family, do it। You want to go and watch Netflix, go and do it। क्योंकि आपने वो 2 घंटे डेडिकेटेड फोकस के साथ काम कर लिया। यू हैव यूज योर टाइम इन अ क्वालिटी वे, रादर देन ये कहने की बजाय कि आज मैंने 10 घंटे काम किया। यू हैव कंजर्व योर एनर्जी कि मैंने ये चीज 2 घंटे में कर ली। आई हैव लाइक बीन प्रोडक्टिव इन दोज 2 hours। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि आपने 10 घंटे की चीज 2 घंटे में कर ली। नाउ यू विल हैव अ बेटर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट डे कि यार अब मैं ना वो चीज तो और जल्दी कर लूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे वर्क करना है। वरना होता क्या है कि अगर हम डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं तो 10 क्या 20-30 घंटे भी लग सकते हैं उस सेम चीज को करने में। एंड ये मैंने भी खुद ने भी फेस किया हुआ है, मैं भी सीख ही रही हूँ। अभी मुझे उस 2 घंटे को भी और कम करके लाना है, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। बिलीव मी, इट्स नॉट easy when you do something new for the first time।
देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम इन योर वे कि जो आप जैसे जैसे करते जाओगे यू विल स्टार्ट बिकमिंग मास्टर एट इट। और जो हम लोग दूसरों को देखते हैं ना कि यार वो कैसे करते, वो कैसे करते, वो भी यहीं से ही गए हुए हैं। इट्स नॉट दैट दे हैव रीच दैट लेवल ऑटोमेटिकली, उनके साथ भी यही सब हुआ है। सो ट्राई टू लिव डिस्ट्रैक्शन फ्री। एंड वन मोर थिंग दैट इज, आज के जमाने में क्या होता है, वी आर विक्टिम ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम लोगों को क्या चाहिए, बस आज मैंने ये लॉन्च किया ना मेरा कोर्स, मैं मेरा फिर से मेरा ये एग्जांपल दे रही हूँ, आज मैंने ये कोर्स मेरा लॉन्च किया है ना, नेक्स्ट वाले में तो ना मेरे पास ना 5-10 क्लाइंट तो आ ही जाने चाहिए, जो मुझे लाइक है ना मतलब मेरे कोर्स में आने के लिए एकदम रेडी हो और मिल ही जाने चाहिए मुझे। होता है कि नहीं होता है? वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट। हमें अब भी, आज मैंने अब लॉन्च किया है, मुझे अब अगले वेबिनार में तो चाहिए ही चाहिए। बट हियर वी नीड टू हैव पेशेंस, जो कि आज की भागती दौड़ती दुनिया में हमारा बहुत 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 कम हो गया है। जहां पे हम पहले का, अगर हमारा टाइम याद करें स्कूल कॉलेज में, इफ वी हैड टू प्रिपेयर फॉर सम टॉपिक जो हमें डिलीवर करना हो या जो हमें होमवर्क मिला हो, हम लोगों को कितना टाइम लगता था। वी यूज्ड टू गो चेक द न्यूज़पेपर्स, गो चेक द लाइब्रेरी, चेक द बुक। अब क्या है, गूगल में जाओ, सिर्फ टाइप करो, एक नहीं आपको 17 चीजें मिल जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो उस चीज ने क्या किया है, हमारा पेशेंस लेवल तो खत्म ही कर दिया। वी डोंट हैव पेशेंस टू वेट टू सी द रिजल्ट्स बिकॉज एवरीथिंग टेक्स टाइम। और जब हम दूसरों को देखते हैं, यार उसका कैसे हुआ, उसका कैसे हुआ, उसने भी यही सब किया है। दे हैव वर्कड आउट इन बैकग्राउंड, क्योंकि हमने उनको क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया है, वी डोंट नो। उन्होंने भी वहां तक उतना टाइम देकर ही वो लोग वहां पहुंचे हैं। इट कैन बी कि वो लोग 5 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुंच गए हैं, एंड आप 5 घंटे में पहुंचोगे। बट एवरीबडीज लाइफ जर्नी इज डिफरेंट। किसी के पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसी के पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वी शुड नॉट कंपेयर कि हम वहां कितने घंटे में पहुंचे हैं। हम पहुंच गए ना, तो सेलिब्रेट इट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना जो छोटी छोटी चीजें ऑन द वे, तभी हम लोगों को जब वो फाइनल डेस्टिनेशन मिलता है ना, हमें रिग्रेट नहीं होता, यार मैं यहाँ तो पहुंच गई लेकिन मैं बीच में तो एंजॉय करना ही भूल गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि दे forget to enjoy the small wins that they are, the milestones that they are achieving. And पहली बात तो स्मॉल तो बोलना ही नहीं चाहिए। We should celebrate each thing as a big thing only. वाओ, आज मैंने मेरा एक चैलेंज खत्म कर लिया, सेलिब्रेट, पार्टी करो। एंड जब आप ऐसा करते हो ना, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन सक्सेस के लिए, खुश होने के लिए। एंड जब आप अपना 100 करोगे ना, तो ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने मेरा फर्स्ट वाला एंजॉय नहीं किया, क्योंकि हम लोग साथ में पैरेलली एंजॉय करने के लिए भी टाइम निकालते आ रहे हैं। So that's all for the day guys. I hope you enjoyed कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, what are the small things that we need to change, the mindset that we need to change, and just don't keep waiting and roll in action. We can either have results in our life or we can have excuses. It's our choice what we want to go for. Every human being has n number of responsibilities to give excuse. ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पे आपके साथ हूं तो मेरे पास 100 दूसरे काम नहीं है। But why I chose this? First of all, I love this. I love helping people. And secondly, I am like going for my results. जो मैंने मेरे लिए ड्रीम लाइफ चुनी है, उसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ। तो आई हैव नॉट स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता।
But it is not that हम लो में नहीं जाएंगे. We will go. We are human beings. We will go. मैं भी जाती हूँ. If you ask me, this week itself, I had an unplanned travel to my hometown. I went low because things were not happening according to my plan. There was something else that came in my way. But did I stop? नहीं, ठीक है ना, कुछ और आ गया, ठीक है. मैंने, you won't believe, I have asked my mentors, my friends, everybody कि यार I am feeling low, what should I do? I tried to find the solution, क्या करूँ? And the moment you start seeking for answers ना, the answers come to you. Immediately I said I don't live in this low energy. मैं launch कर रही हूँ मेरा challenge 3 दिन का. And here I am with you. Can you see मैं low energy में दिख रही हूँ आप लोगों को? That is the way. हम लोग human beings हैं, problems आएगी, चीजें आएगी. Only thing is we should find out how. Rather than asking why me, we should say try me and figure out the ways to overcome it and again get back. हम ऐसे ना लाइफ ऐसे ही करके जुम करके ऊपर नहीं जाती. लाइफ ऐसे जाती है ऊपर नीचे. ओनली थिंग इज हमें, हाँ, जब नीचे जाते ना तो नीचे ऐसे सो नहीं जाना है, वहां से वापस ऊपर कैसे आना है उसके बेस फिगर आउट करते हैं. So I hope you enjoyed all these 3 days and got a lot of value. And I'm truly, truly grateful to each one of you for being here, trusting me and my coaching. And I would like to tell you that I am coming in February with a 5-week program. And if you are interested, you can book one-on-one clarity call with me. To know more about that program, I will be happy to give you all the details of it. I know, Karishma, you have enrolled for the one-on-one coaching. It got missed because of the unplanned thing, but we will have it this week. I will share the details with you. So thank you guys. Thank you for supporting me and being here. I'm truly, truly grateful to you. And if you wish to continue the journey with me, I am there. Do DM me and I will share the details of the one-on-one coaching with me, which is a free clarity call. वो उसका कोई कॉस्ट नहीं है. आप आओ मेरे साथ डिस्कस करो. व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स? इफ यू रेजोनेट विद माय प्रोग्राम, then go ahead and enroll. And if you don't, it's okay. Maybe some other program you will like about me. So the journey doesn't stop. अगर नहीं भी enroll किया तो भी it's okay. And enroll किया तो best है. Because I am going to give my 100%. Believe me on that. So thank you, everybody. Thank you for joining. Thank you, Anita. Thank you.